दे सदका ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਰਵੀਲਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ जिस शब्द से उन्होंने आके समाप्ति की है, इतों ही आप विचार शुरू करते हैं। इस तो पेश तक पहला कृपा करो भी एक बार सतगुरु महाराज का ये पावन शब्द दोहरा लिए सारे, फिर आप चलते हैं। वाहिगुरु जी सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपल है, सतगुरु मेरा मार जीवल है। सतगुरु मेरे की वडियाई, प्रगट भई है सबनी थाई। सतगुरु मेरा तान नितान, सतगुरु मेरा घर दीवान। सतगुरु कया हूँ साधु बढ़ जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुरु सेविया तिस भौ ना व्यापै, जिन गुरु सेविया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमृत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। अमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछान। हाथ दे रखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। साचा साहिब साधु मेहरबान, बंधु पाया मेरा सतगुरु पूरा। बंधु पाया मेरा सतगुरु पूरा, वही सर्व कल्याण। वही सर्व कल्याण, वही सर्व बंध पाया मेरा सतगुर पूरा। बंध पाया मेरा सतगुर पूरा। बंध पाया मेरे सतगुर पूरा। सारे आखो पाया मेरे सतगुर पूरा। बंध पाया मेरा सतगुर पूरा। बंध पाया मेरा सतगुर पूरा। बंध पाया मेरे सतगुर पूरा। बंध पाया मेरे सतगुर पूरा। वही सर्व कल्याण, 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 वही सर्व कल्याण। जियो पाए पिंड दिन साधिया, दिता पहलम खान अपने दास की। हाँ जी, अपने दास की आप पैदा रखे। नानक सतगुरबान कृपा करो। फतेह बुलाइए मिलके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। सतगुरां दी महिमा आगाध बोलदा है। नमो 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 नेत 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 है। आगाध बोलदा महिमा पातशाह की। तो गुरु कलगीधर पातशाह जी का
ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੇ? ਇੱਕ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਰਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਪਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੱਚ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਚੇਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾ ਇਤਨੇ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਦੇ, ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਚਨ, ਚੂँਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੌਖਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਨਾ ਸੀਸ ਵੀ ਤੇ ਧੜ ਵੀ ਬੇਸੰਭਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਲੈ ਜਾ, ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ,
कहते जी है सन, बहुत सिख है सन। फिर क्यों नहीं कोई अगे वधिया, क्यों नहीं कोई नोटिस किया गया कि यह फलाने सिख ने, सिख होने के बावजूद अगे वध के आ नहीं रहे। कहते जी उन्होंने पछाण वक्री नहीं सी कोई, दूजियां दे विच अभेद सन। तो फिर सतगुरु महाराज ने उत्थे जोश विच आके आखिया, इस विद को अब पंथ बनावो, सगल जगत में बहु विद तावो। हाँ जी, मैं इस प्रकार का पंथ साजांगा, प्रगट करांगा, जेड़ा पंथ उस पंथ विच चलण वाला इयों सारियां दे विच वखरा नज़र आवेगा। जिवें कावां दे विच हंस हुंदा है, जिवें आम जानवरां दे विच शेर हुंदा है, इस प्रकार वखरा नज़र आवेगा। ये गल 1675 की है। 11 नवंबर ਨੂੰ सतगुरां ਦੀ शहादत ਹੁੰਦੀ है, 9वें पातशाह जी की। तो 5 दिन बाद का यह समा है जदों सतगुरां दे शहीदी सीस का संस्कार किया जाता। उपरंत यह बचन होए। नवंबर 1675 तो लैके तो फिर 1699 30 मार्च आ गया, उस वेले का जो कैलेंडर सी। फिर सतगुरां ने इतना समा क्यों लगाया? साढ़े सामने एक सवाल पैदा होगा। जिस वेले असी होर गंभीरता नाल विचार करांगे तो असी इस गल नाल किवें सहमत हो सकांगे कि सिੱਖੀ ਦਾ बीज तो दिल्ली दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बीजिया सी। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब घट्टो घट्ट 2 बार दिल्ली गए हैं, 2 बार। उन्होंने पावनी याद के गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब बनया होया है, स्थान बनया होया है, मजनू का टिला बनया होया है। नानक प्याओ का जिस वेले स्थान बनया है उस आया तो मैं इतिहास जिस वेले पढ़ रहा सा तो मेरे सामने आया कि ये सतगुरु कैद विचों जिस वेले बाहर आए ने, दिल्ली की कैद विचों, तो फिर इत्थे नानक प्याओ साहब स्थान पर बैठ के सतगुरां ने शब्द का उपदेश भी किया तो नाल इत्थे बैठे जल भी छकाउंदे रहे तो नानक प्याओ बन गया। किहड़ा बादशाह सी? सिकंदर लोधी। तो बादशाह सिकंदर लोधी दी कैद दे विच सतगुरां नूं रखिया गया। तो छड्डिया कदों गया? जदों सिकंदर लोधी ने आप मुआफ़ी मंगी। हुण बादशाह मुआफ़ी मंगता है तो फिर हुकूमत के हेठलियां करिंदियां दी तां कोई गल परवाह वाली है ही नहीं ना। और अनेकां ही लोग उस वेले सिख बने ने, अनेकां ही लोग। फिर गल इत्थे नहीं मुकदी। इतिहासक पक्ष तो जिस वेले असीं विचारते हैं तो उत्थे एक प्रसिद्ध स्थान है भाई कलियाणा जी की धर्मशाला सी। हुण तां अजे तक अलोप है, अजे उबार विच गल नहीं आई। वो कुछ चिन्ह तो मिल गए ने पर अजे पकड़ विच पूरी नहीं आई गल। भाई कलियाणा 5वें पातशाह महाराज के समय सिख बनया, अपने घर में इसने धर्मशाला बनाया। उस धर्मशाला दे विच 6वें पातशाह आके ठहरे, बाबा राम राय ठहरे, धन गुरु हरकृष्ण साहब ठहरे परिवार सहित इत्थे आके, अपने माता जी सहित उत्थे 9वें पातशाह भी आके ठहरे। और फिर इयों कहा जाता कि जदों 10वें पातशाह दिल्ली आए ने, मोती बाग ठहरे ने, तो शायद उत्थे कलियाणा जी की धर्मशाला में भी ठहरे, माता सुंदरी जी भी उत्थे आके ठहरे। सिखों की गिनती तो इतनी ज़्यादा सी उत्थे। तो 1675 के विच ऐसा जुरत वाला कारज क्यों नहीं हो सकिया कि सिखों की पछाण वखरी नहीं सी है? एक गल मैं होर तुहाडे नाल साझी करा, शेयर करा, जिहड़ी कि प्रचलित है। वो ये प्रचलित है, इस बारी होले महल्ले ते उत्थे आनंदपुर साहब भी विचार करदे होया सतगुरु महाराज ने प्रेरणा की तो ये विचार संगत के रूबरू रखी। जदों कुछ सिंघां ने रैफरेंस दिता, किहड़ा रैफरेंस दिता? जिहड़ा मैं भी आरंभ दे विच दिता कदी। वो की सी? प्रचलित सी गल कि जदों सतगुरु महाराज ने खालसा जिस दिन सजाया है, आवाज़ दी तो भाई दयाराम जी आए ने, तो सतगुरां ने आखिया कारज परियो आण इस करला पूर्व सिर दे अब विसाला। अपना कोई शीश भेंट करे, कोई है सिख बेटा जो करे शीश भेंटा। अनेक शीश चाहिए जरा जल्द जल्द आइए।
ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਐਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੇ ਤਕੜੀ, नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उठे उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे टकराऊं। जो सतगुरां ने ना आने वाले समय का प्लान जिहड़ा सी वो सामने लिआंदा, तो फिर भाई दया राम ऐं हथ जोड़ के आखते हैं, तुसां ने ना ध्यान नाल डूंघाई दे नाल इस कौतक दे विच जिस वेले उतरना होवेगा, विचारना होवेगा, तो ये जिहड़ी गल है जज्बाती तौर पर कहन ते सुनन वास्ते सानू इमोशनल करती है, चंगी लगती है, पर सिद्धांतक तौर पर इतिहासक तौर पर यह गल टिकती नहीं। तुसीं कहोगे क्यों ये गल नहीं टिकती? भाई दया राम जी फस्ट टाइम गुरु घर दे विच नहीं आए सन कि वो पहली बारी आनंदपुर साहब आए सन, या गुरु घर दे चलन नूं उन्होंने पहली बार देखिया तकिया, ऐसी गल नहीं सी। भाई दया राम जी होनी उस परिवार दे नाल संबंधित ने जिस परिवार का वडेरा भाई पारो साहब नाम का व्यक्ति सी, जिन्हों गुरु अमरदास पातशाह जी ने परमहंस आख्या सी, परमहंस आख्या सी। ये उन्हां दी परिवार दे विच चौथी के पंजवीं पीढ़ी तकरीबन बनती है भाई दया राम जी होरां दी। इत्थों भाई पारो जी परमहंस जिहड़े सन गोइंदवाल साहब दे कोल ब्यास दे परले पासे रहा करते सन। बाद विच परिवार जिउं जिउं परिवार वड्डे हुंदे गए, ये इत्थों उठ के ते उत्थे चले गए। भाई सुधा जी इन्हां दे सत्कारयोग पिता जी लाहौर दे कोल चले गए, ते उत्थों ये इत्थे आए सन। कि ये गुरमत गुरबाणी तो बिल्कुल अनभिज सन, इन्हां नूं पता नहीं है सी। संगत जी जदों असी ध्यान नाल देखते हैं विचारते हाँ तो गल साडे सामने आती है कि भावें सतगुरां ने जिस वेले चिट्ठियां भेजियां सी दसम पातशाह जी ने कि आओ सारे असी तुहाडे नाल एक विशेष प्रोग्राम देना, एक विशेष वचन करना है, तो बड़ा भारी इकट्ठ होया, जिथे कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 80,000 का इकट्ठ सी। हो सकता है कि विसाखी के मेले ते आउण लगे हाँ नाल कुछ होर वैसे ही कुछ तुर पैंदे मित्र दोस्त, हाँ जी मुंडियां दे मित्र दोस्त भाइयों के नाल साथी तुर पै, यार बेली तुर पै, चलो यार असी भी तुहाडे मेले ते जा आउने आ, असी भी आनंदपुर साहब जा आउंदे आ, या कुछ ऐसी गल हो सकती किसी हद तक। पर जिस वेले सिर देने वाली गल आउंदी है तो कोई भी नवा व्यक्ति सतगुरां दे बचन ते आके ते सिर देने लई तैयार हो सकता है? कोल्ड ब्लडेड, कोई संघर्ष नहीं चल रहा, कोई मुकाबला नहीं चल रहा, कुछ मारिया नहीं जा रहा, हाँ जी कोई मार काट की जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो कोई अगे बढ़े तो आके अपना शीश भेंट करे, ये कौन करेगा? मैं ऐसा प्रतीत करता संगत जी जिस वे असी विचारते हाँ केवल वही करेगा जिसका अपने सतगुरां दे उपर पूरा विश्वास है, जिसका अपने सतगुरां दे उपर पूर्ण भरोसा है, जिसका अपने सतगुरां दे उपर पूरी श्रद्धा है, जिहड़ा ये समझदा है कि सतगुरां ने जदों सिर मंगिया है तो मैं सिर भेंट करन तो इनकार नहीं करना, मैं पिछे नहीं हटना। मैं तो इत्थे कुछ वचन सतगुरां दी चेते करिया करदा, हाँ मन अरपी सब तन अरपी, अरपी सब देसा, हाँ सिर अरपी ते समीत प्यारे, हाँ जी कौन जो प्रभ दे संदेशा। जिहड़ा परमेश्वर की गल सुनाउण वाला, मैं तो अपना शीस उहदे भेंट करदा हाँ। सतगुर आग्या शीस भेंट देओ जे सतगुर सच है भाव है। अज भी असी वचन चेते करते हाँ जी, आ भलके तुसीं रागी सिंघां दे पासों सुणोगे हुण इस वेले समय नूं सुभाएमान करन दे वास्ते इन्हां शब्दां नूं दोहराया जाता है। कौन करेगा इन्हें? वही करेगा जिहड़ा पहलां बाणी नाल जुड़िया होया है, जिस दे अंदर सतगुरां दे प्रति श्रद्धा है। फिर मैं तो एक होर
ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੂਤ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਚੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਡ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਏ ਚੋਏ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਧਰਮਚੰਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮਚੰਦ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਬਿਲਵਡ ਵਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਕਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 80,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3, 4, 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ 20,000 ਤੱਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਇਹ 5 ਹੀ ਕੇਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਪ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, 20,000 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ।
और केवल वक्ती तौर पर ही एक स्टेटमेंट नहीं दी, एक वचन नहीं सुनाया, बल्कि जो स्टेटमेंट दी, जो वचन सुनाया, वो वचन लिख दिता, लिख के साड़ी झोली में पा दिता। पंजवें पातशाह महाराज ने पावन ग्रंथ साहिब जी, जिन्हों का उस वेले नाम जोड़ा सी पोथी साहब के रूप में प्रगट कर दिता, हरमंदर साहिब में प्रकाश कर दिता। दसम पातशाह महाराज ने नौवें साहिब जी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी शामिल कर दी। ग्रंथ साहिब जी संपूर्ण हो गए, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब कहना ही बाकी रह गया। सारिया तैयारियां हो गई हैं। और जिहड़ी गल हैगी है कि भाई दयाराम आखदे भी हाथ हमारा तोले तकड़ी नंगी कद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलन से कैसे टकराऊं। तो मैं ध्यान करदा कि छेवें पातशाह महाराज ने 4 लड़ाइयां लड़ियां, उन्होंने लड़नियां पईयां। वो लड़ाइयां कदे नाल लड़ियां गईयां? हाँ जी, सिर्फ सतगुरु महाराज मीरी पीरी के मालक ने, ते मीरी पीरी के मालक कल्ले ही तलवारां घुमाउंदे रहे कि उन्होंने थले भाई बिधि चंद, भाई जेठा, भाई लगाहा ते होर जिहड़े सन जरनैल सन, भाई सिंगारू वर्गे। हाँ जी, उन्होंने कमान थले सैकड़े नहीं हज़ारां सिख जिहड़े सन शस्त्रधारी हो के ते लड़े सारे। सतवें पातशाह जी के वेले हर वेले 2200 तैयार बर तैयार सिख सतगुरां की अरदन में रहने वाले हर समय। तो केवल उही जिहड़े पहले दिन दाखल होए नहीं, वही नहीं बात है। सारे जिहड़े गुरु के सिख सन ना, वो तैयार बर तैयार हो के ही विचरदे हुंदे सन। असीं यह पक्ष जिहड़ा है ना अणजाणे विच बेध्याना करके हैं असीं। इस तरह दसवें पातशाह महाराज जिन्हों ने नदाउन की लड़ाई में हिस्सा लिया, नदाउन की लड़ाई जिन्होंने लड़नी पई, भंगाणी का युद्ध लड़ना पिया। मैं ऐसा प्रतीत करदा, साडा इतिहास भी सानू चिन्ह दिंदा है कि ये भाई दया राम जी उन्होंने लड़ाइयां में शामिल ने, धर्मचंद जी उन्होंने लड़ाइयां में शामिल ने। गैर नहीं सन, ओपरे नहीं सन, कच्चे पिले नहीं सन, अधूरे नहीं सन। वो सारे इस शब्द का पाठ करने वाले ने। सतगुर मेरा बेमुहताज, हाँ जी, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा शब्द का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सतगुर मेरा सर्व प्रतिपाला है, सतगुर मेरा मार जी वाला है। सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट भई है सबनी थाई। तो फिर ऐं नहीं, मानयोग जी ने जिस वेले मान मिलिया, सत्कार मिलिया, प्यारे वाला खिताब मिलिया, सतगुरां ने सीने नाल लगाया, तो भाई साहब होरी उदों फिर प्यार नाल कह रहे होण हमरी गणत न गणियां गाई, वाहिगुरू अपना बिरद पछान। हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान, साचा साहिब सद मेहरबान। और बंद पाया मेरा है सतगुर पूरा है। बचन पंजवें पातशाह का उच्चारण किया होया। तनासरी राग के थाओं सिर सतगुरां ने दर्ज किया है, आप ही पंजवें पातशाह जी ने उन्होंने दर्ज किया होया। पहला सिख पढ़ते नहीं होंगे सन, सिख विचारते नहीं होंगे सन। और एक वचन मैं होर तुहाडे नाल साझा करदा, फिर आप समाप्ति करिए। भाई साहब राय सिंह जी आ गए ने, गुरु प्यारे कीर्तनीय धन गुरु रामदास पातशाह जी ने दरों वरसाए होए असीसां दे पात्र बहुत प्यार नाल सानू सरवण करवाया करते हैं। आपां करते हाँ। भाई नंद लाल जिवें कि मैं प्रतीत करदा तो मैं देखदा, जिस दिन ये सारा कार्य होया है विसाखी वाला तिहाड़ा, भाई साहब देख रहे हैं सब कुछ। और सब कुछ देख के ना फिर जिहड़ा कुछ उन्होंने प्रतीत किया वो लिखिया, तो विद्वान सज्जन उतों टो लेंदे ने, टो कहते ने, भाई साहब कहते ने सरपाश पासरशुदा दर राहे मुहब्बत गोएम व लेकिन सारो पा नाशना सीम। अज
सिर पैर हो गए, पैर सिर बन गए, दर राहे मुहब्बत इस गुरमत मार्ग प्यार दे प्रेम दे मार्ग ते अज गुरु सिख हो गया, सिख गुरु बन गया। हाँ जी, कहते ने गोएम मैं कहता हाँ नंद लाल जी, मैं कहता हाँ, पर मैनू पुछियो जे कोई ना कि नंद लाल जी तुसीं दस सकते हो कि इन्हां विच गुरु कौन है ते इन्हां विच सिख कौन है? कहते ने वाह लेकिन सारो पारा नाश नासेम, नंद लाल भी कोल रहिंदा होया वेखदा होया भी अज पछाण नहीं सकदा कि इन्हां विच गुरु कौन है, इन्हां विच सिख कौन है, क्योंकि ये भेद हो गया। हुण मैं ना समय की काल दे विच ना इतिहासक पॉइंट्स जिहड़े ने तुहाडे सामने रख के, बहुत सारे होर ने आपां फिर विचारांगे, रख के ते मैं इस ते तुहाडा ध्यान लिआउणा चाहुंदा सां। ये सारी अचनचेती कोई घटना नहीं सी, ये सारा कोई एक दिन का फैसला नहीं सी। ये सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा मार्ग तोरिया सी, उसकी संपूर्णता की जिम्मेवारी दसम पातशाह ते सी, जिहड़ी अज दे दिन होनी सी। और उन्होंने सारिया तैयारियां जिहड़ियां मुढ़लियां सी वो कर करा के अज दे दिन तां सतगुरां ने शस्त्र सदा लई अपने सिख दे गातरे पा दिता। भावें शस्त्र गुरु साहिबान ने 6वें पातशाह ने सिखां नूं इंट्रोड्यूस करवाया होया सी, लेकिन सदा लई शस्त्र गातरे पा दिता, ऐ कीता। कुछ होर सन वचन जिन्हां दा उपदेश दिता जांदा सी, अज सतगुरां ने कमांडमेंट्स दे के, कमांड्स दे के, हुक्म करके कि तुसां ने आने वाले समय में इन्हां वचनां की हमेशा तुसां ने पालना करनी है, इन्हां वचनां का तुसां ने ध्यान रखना, धारनी होना है। तो मैं प्रणाम करदा साहिब दसम पातशाह जी नूं, इन्हां लफ्ज़ां दे नाल, इन्हां बोलां दे नाल, जदों गुरु के प्यार वाले जिहड़े ये सारा कौतुक वेख रहे हैं, वो भी जिन्हां दे नाल ये कौतुक वापरिया है, वो भी हाँ जी, पंजवें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जिहड़ा ये वचन कीता है, इन्हां दे अनुभव विच भी साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा है। हुण बंद पाया दे तुसीं अर्थ लभे हो जे, आने वाले दिनों में आपां सहजे सहजे विचारांगे बंद पाया दे इत्थे की भाव है, की अर्थ है। कहंदे ने पर हो गया, बंद पै गया, और उस बंद पैण दे नाल ना होई सर्ब कल्याण, होई सर्ब कल्याण, होई सर्ब होई सर्ब कल्याण, होई सर्ब कल्याण, होई सर्ब हुण बंद के अर्थ की ने ते सर्ब कल्याण के अर्थ की ने। सर्ब कल्याण केवल पंजवें पातशाह जी के समय तक ही बात सी, दसम पातशाह जी के वेले सिखां दे विच ये बात सी, केवल गुरु के सिखां तक ही ये बात सी कि समुची मनुखता दे विच ही होई सर्ब कल्याण वाली बात बन गई, हिंदुस्तान के इतिहास में सर्ब कल्याण वाली बात बन गई। ये गल्लां तुसीं विचार रहे हो जी, आपां आउण वाले दिनों में फिर समय समय विचारण करने का यत्न करांगे। इन्हीं सेवा प्रवान करियो जी। अगला प्रोग्राम जिहड़ा है उसकी तरतीब मानयोग भाई साहब जी के पासों आपां प्राप्त करिए। भाई राय सिंह जी होरां दे पासों प्यार नाल आने वाले समय के कीर्तन श्रवण करिए। भुलों की खिमा बख्शियो जी। सबना का फिर धन्यवाद प्यार नाल फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।